in Lakhimpur, where 4 people were crushed under a car, and then another 4 died in a counterattack or whatever it was. There's videos coming out. I think evidence should be put together. Put the best investigative people in the police and the intelligence bureaus on the case, and catch these people and put them away so that they pay a big price. And it's not easy for people who want to do the same thing to get up and do it, because they see others getting away with it. So these people should not get away with it, whether it is a minister's son or it is some clowns attacking Ramlila. Yeah, so that Lakhimpur matter is now currently sub judice, and SIT has been formed. And if I were to actually surmise about this whole Lakhimpur incident, the witnesses of what this minister's son said during that, whether he ordered the driver to mow down those poor so-called farmers or actual farmers, that would never be uncovered unless you do some narco tests or something, because all those people except him in the car, who were there in the car, they have been lynched. And they have been lynched to death. Actually, no, one of them is on video being handed over to the police, and he's walking just fine in that video. The police took custody of him, and then somehow he was found dead. So there is actually a lot of shady stuff in that case. And I think the video evidence is going to be the key thing to put all the facts together. Right now, there is so much murkiness. The FIRs are tainted. The video evidence is being suppressed, so people are smuggling it out of Lakhimpur area. People's phones are getting wiped off unexplained. So it's not a simple thing, because there is a very senior minister involved, so it's pretty shady. No, you see, government has the ways to get hold of all those records, because whether or not we like it, people who shot those videos, they must have been on WhatsApp servers somewhere. People predominantly use WhatsApp in India. They hardly use Signal. So those things must be there. I'm sure government and the forensics would get behind, and they would actually create a comprehensive, they would collect all the evidence and be able to create evidence and figure out who's involved and who was not, and what the motive was, whether these people were mowed down in self-defense or whether it was just a rage by which these people were simply mowed down. The Ashutosh, the problem is that the guy at the top who's directing all of the investigative effort, right? Who's actually in power over all of this investigative effort, which is police services and investigation agencies. They are under the Home Ministry, right? And the accused guy's father, is the Minister of State for Home, right? So you can't have an honest investigation happening when the guy's father is directing everything from the top. So I think the first thing that he should do is what's called recusing yourself. Like here in the US, for example, where I live, if someone has a conflict of interest, which would be the case when your son is getting investigated, you shouldn't be in the path of the power structure that's investigating it. So you recuse yourself, let someone else do the job. And that hasn't happened. That minister should recuse himself from the case. Actually, he should probably just take a leave for a few days or weeks until this thing is sorted out. People's faith in the investigation is going to depend upon whether this guy is still in place in his ministerial post, or he has actually reasonably recused himself. So I think these processes of justice have to be done correctly. Otherwise, trust in government, trust in investigations is going to be hampered. That is a chronic problem. And in this day and age, like you mentioned, technology exists to put all the facts together. These are very well documented incidents, both the Ramlila and the Lakhimpur incident, and there's no reason why this investigation should get tainted. But the trust factor is major. If Mr. Mishra, the minister, is still in charge, a lot of people are going to have very strong suspicions about investigation not being clean. And I would say the same thing about the Punjab investigation, in the Ramlila investigation. Put some people in charge who can
impartially do the investigation, and people who are involved should recuse themselves, whether it's a politician or an IPS officer or whoever. Do clean investigations and punish the people who are doing this crazy stuff, because it can spin out of control pretty badly, pretty fast. And elections, they get corrupted too. So this is gonna create an unending unending series of back and forth accusations. Yeah, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਧਮਕਾ. I think at the end of the day, everybody in Punjab, India, in UP, we have to recognize that if we can't honestly deal with one another on the things that we agree, which is the laws, regulations, and you may even disagree with it, but as part of a democratic country, you have to follow the law, right? So I think if the law is followed, I would. Rajvinder, there are many factors. If you're talking about the law, then the farmer protest should be closed. No, Manish, you will speak in Hindi because Rajvinder cannot speak Hindi, so let him speak in English, and we can, क्योंकि हमारे नीचे दर्शक भी है ना, तो I think Hindi would be the appropriate language to discuss. Okay, राजविंदर जी, फिर जो आपने जो बात कही है ना, जो लोगों ने लॉ को मानना चाहिए लोगों को, तो उसमें ऐसा है कि फिर तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको तो बंद कर देना चाहिए था कब का. ठीक है भैया, कर लो गिरफ्तार. I mean, who's saying that they... It's not about गिरफ्तारी. It's not about गिरफ्तारी. That's what I'm saying ना, कि जो जैसे क्या कहते हैं, पैट्रनाइज किया जा रहा है फार्मर्स को, उनको प्यार दिखाया जा रहा है इस हिसाब से. देखो, अगर कोई बंदा प्रदर्शन करने जा रहा है तो उसको कानून के मुताबिक आप गिरफ्तार कर सकते हो, सजा दे सकते हो, वही कर सकते हो. क्योंकि अगर उसको कोई और तरीके से सजा दे रहे हो, और तरीके से धमका रहे हो, या लाठी चार्ज करके चोट पहुंचा रहे हो, that's just going to make things worse. ठीक है ना? ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੋਗਲੇਪੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ. या तो सरकार है पंजाब में, इंडिया में, जो काम चला सकती है, या फिर वो नहीं है. सरकार अपना काम करे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, ठीक है ना. अब मोदी साहब ने कानून पास कर दिए हैं, ठीक है, मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, कानून पास कर दिया, लोगों को अच्छा नहीं लगा, उस पे तो बहुत अड़े हुए हैं. तो बंदों को गिरफ्तार करने में, ये मार पिटाई रोकने में उस टाइम मोदी साहब और सरकार को क्या बीमारी? भाई दोगले लोग हैं ना यार हमारे, ये जो लोग हैं भाई सिंपैथी ले रहे हैं, फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. सरकारी साहब, let me just a second. All kinds of things, काफी बातें कह रहे हो, सरोपा ये वो, those are all non-government matters, ठीक है ना. वो सरकारी काम नहीं है. सरकार का काम है कानून को लागू करना, और जो कानून तोड़ता है उसको पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको सजा दिलवानी, ठीक है. और फिर एक उनका काम होता है सिंपैथी गेन करना और कहना हमारे पे जुल्म हो रहा है, हम गुलाम हैं, हमारे पे ये जुल्म हो गए देश में, हमारा देश नहीं है, ये है वो है, रोना रंडी रोना सारी जिंदगी बस बैठ के. वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो चलती है. और जो जुल्म हुए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है ना. आई हैव थाउजेंड्स ऑफ केसेस के जिनमें बंदों को घर से उठा के ले गए, कोई कसूर नहीं था, किसी का मार डाला, प्रमोशन ले ली. कौन लेकर गया भाई साहब, प्लीज एक बार बताना कौन लेकर गया. वीर एक मिनट यार, मेरा भरा मैं बोल दे नहीं, चुप कर एक मिनट. राजविंदर जी कौन लेकर गया घर से उठाकर, बताएंगे प्लीज? पंजाब पुलिस. और पंजाब पुलिस में कौन था पुलिस में, बताएंगे आप? पंजाब पुलिस के मुलाजिम और IPS ऑफिसर्स. नहीं वो सिख ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? No, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ. सरकारी मुलाजिम चाहे सिख है चाहे हिंदू है, सरकारी मुलाजिम सरकार का ऑर्डर पालन करता है, ठीक है ना. Why are you communalizing? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ 50,000 ਪਿੱਛੇ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ यही चीज जो है राजविंदर जी. यार अगर किसी को बोलना ना तो प्लीज अपना माइक फ्लैश करना और फिर बोलो सलोनी. यही चीज ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ
कि एक को टारगेट क्यों करते हैं, तो यही तो चीज हम बात कर रहे हैं कि इफ they have the issues with the government, then why the hell they are attacking on our Ramlila thing or anything religious जो हमारे उस पे क्यों अटैक कर रहे हैं? उसका क्या रिलेशन है? उसका क्या रिलेशन है? 2 मिनट राजेंद्र, पहले उनको अपनी बात कर राजेंद्र भाई एक बार उनको बात करने दो। जो माइक फ्लैश कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर प्लीज अपनी सब बात रखेंगे। हाँ। ठीक है राइट, मैं बस यही कह रही हूँ टू बी वेरी प्रिसाइज कि जैसे अगर उनके टाइम पे ये चीज बोली जाती है कि आप एक चीज को टारगेट ना करो, तो वो लोग भी क्यों टारगेट करते हैं? हर एक बीजेपी का बंदा मतलब अगर है तो वो हिंदू से रिलेट कर देंगे, ब्राह्मण से रिलेट कर देंगे। अगर जो पास्ट में हिस्ट्री में जो भी चीजें हुई हैं XYZ, वो व्हाटएवर रीजन सर जो भी हो कुछ भी हुआ, तो दिस इज लाइक डोंट टारगेट वन कम्युनिटी और वन सलोनी आगे लेके विश्वास कर दियो सरकारी। 2 मिनट यार, 2 मिनट। जो लोग बात करना चाह रहे हैं ना उन लोगों की भी सुन लेते हैं। वीर जी पहले आए हैं, वीर के बाद एंडी है, उनके बाद पुनीत। वीर जी बोलिए। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ? भाई हिंदी में बात करें ताकि ना मैं भी हिंदी में लगाऊं ताकि और भी लोग ओके सॉरी। मैं राजविंदर जी को ये बात पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को किसान लोग बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों को किसने हक दिया कि वो आर्मी की गाड़ी को कार्रवाई को रोक सके? वो कह रहे हैं कि हम आपको तभी जाने देंगे, पहले अपने आई कार्ड दिखाओ, अपनी जो भी आपके पास है हमें दिखाओ, हम तभी जाने देंगे। किसने हक दिया उनको आर्मी से रोकने के लिए? Can I answer? First, Saloni. और अभी और कोई भी था? एंडी था आई थिंक। एंडी गौरव जी। हाँ, मुझे बस एक छोटी सी बात ये पूछनी थी कि राजविंदर जी कह रहे थे कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं आप इनको बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम से देखिए कि ये क्यों हो रहा है और ये इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। आई गेस आई हैव बीन हियरिंग दिस अ लॉट एंड आई गेस दिस इज अ रॉन्ग वे टू सी थिंग्स बिकॉज दिस इज ओवर ट्रिविलाइजिंग द इशू, है ना। आप इतना ज्यादा ट्रिविलाइज नहीं कर सकते इशू को, बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक कर रहे हैं आप चीजों को। अगर ऐसा ही है कि ये इंडिया है, यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट्स में इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो क्या अब हम हर चीजों को बस ऐसे ही देखेंगे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या सचमुच सारे इंसिडेंट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं? नंबर 1। और अगर तो ऐसा होता है तो राजविंदर है यार, जस्ट मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूँ। इनके बाद राजविंदर भी, मैं एक अनाउंसमेंट करूँ, राजविंदर भी यहाँ पे बात करने के लिए आया है और मैं भी बात कर रहा है ना, उससे पीसफुली बात करो, कोई अटैक। 2 मिनट रुको रॉन, बस 5 सेकंड और अगर तो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्या राजविंदर जी ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये खुद भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है राजविंदर, खुद भी। ब्रदर 2 मिनट। पुनीत जी, शर्मा जी, Let me answer. हाँ जी Because lot of things are piling up, so I can't remember all of them. First, Saloni. हिंदी में हो जाएगा। पहले सलोनी, आप शायद यहाँ पे नहीं थी या आपने सुना नहीं जो मैं कह रहा था। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ कि जो लोग रामलीला पे अटैक कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, वो सिखों के भी दुश्मन है, क्योंकि सिखों को बदनाम कर रही है वो इंसिडेंट। ठीक है, चाहे कहीं से भी आए हो तो उनको पकड़ो, उनको अंदर करो, उनके ऊपर मुकदमा चलाओ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, पहली बात ये। भाई जो सिखों को बदनाम कर रहे हैं, सिखों की जिम्मेवारी नहीं उनको पकड़ के मारने की। अरे उनको बोलने दो यार, अगर वो डिसेंसी से अगर बात कर रहे हैं, एक का भी जवाब नहीं सुनते हो। नहीं राजविंदर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2 मिनट उन्होंने बोला तो आप जवाब दे रहे हैं, आप बोले आपके पास दूसरा सवाल था आई थिंक वीर का, कि भाई इनको किन्होंने हक दिया है गाड़ी रोकने का। ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली राइट, दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं जो कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, नामिलवर्तन लहर जैसे अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है ना, तो नामिलवर्तन लहर में वो गाड़ियां रोक रहे हैं। आप लोग नहीं राजविंदर जी, सॉरी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सिविल गाड़ियों, मेरी बात तो सुनिए, सिविल गाड़ी का रोकना रोको, सुन लेने दो यार, रोकता जाओ यार, गलत बात सर। वीर जी आपको टाइम दूंगा मैं, आप काउंटर करना उसको, आप काउंटर करना, मेरा क्वेश्चन सही तरह रखा था मैंने। 15 सेकंड में बात सुन लो, 15 सेकंड नहीं, मुझे सिर्फ 5 सेकंड, मुझे 5 सेकंड।
So वीर wants to हल्ले कौन गया? हल्ले तो कोई ये नहीं। सवाल में जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं सर। मैं आर्मी की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आर्मी की गाड़ी, सिविल गाड़ी की नहीं बात कर अरे रहा हूँ। रुको यार, रुको 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 प्लीज। किसी की भी गाड़ी नीचे रोकी हो, यहाँ पे गाड़ी नीचे को कौन रोकना। किसको कर रहा है यार? नीचे कौन किसको कर रहा है यार? ये संजू जी को भी नीचे किया और बबलू जी को भी नीचे किया। क्यों किया? गुरी पाजी ये मैं कर रहा हूँ, सिर्फ उनको 10 मोड बने हुए थे तो मैं मोड कम कर रहा था। ओके, ओके, ये ओके। मेरा मकसद था। ओके ओके ओके। वो बुला लिया मैंने ऊपर। तो टू फिनिश वीर्स क्वेश्चन, दिस इज सिविल डिसोबीडियंस, नामिलवर्तन जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पकड़ लो भाई, अंदर कर दो, उसमें मेरे को कोई इतराज नहीं है, पकड़ो उनको, जेल में डालो। और जो अगर आप हो गया आपका ब्रदर? तीसरा सवाल था, आई डोंट रिमेम्बर कि किसने पूछा था, वो ये था कि पॉलिटिक्स जो है, इलेक्शंस तो होते रहते हैं इंडिया में, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, हर जगह पे ये किया जाए। हाँ जी, हर जगह पे ये किया जाए, क्योंकि ये तो काम बेसिक है सरकार का कि कानून वगैरह को लागू करना, जहाँ पे कोई शरारत हो रही है उसको रोकना, बल्कि इसके के बजाय इसके कि पॉलिटिसाइज करके उसका फायदा उठाना। ठीक है ना। अगर आपकी सरकार बनती है, समझ लो आज मैं अकाली दल का बंदा हूँ, जो एक्चुअली आई हेट द फकिंग अकालीज, बट व्हाटएवर, यू नो, मेरी सरकार बनती है तो सबसे मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून को लागू करें। सरकार का पहला काम है। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ चेरी भाई सुनो चेरी भाई आपको टाइम दिया जाएगा। राजेंद्र जी 2 मिनट। जिसने भी कोई बात करनी हो ना, प्लीज माइक फ्लैश कर देना, मुझे पता लग जाता है, मैं देख लेता हूँ, मैं उसी टाइम रोक दूंगा और बात आगे चल जाएगी। ठीक है राजेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, अपनी बात 10 सेकंड के अंदर खत्म करें सर। हाँ जी, वो पूछ रहे थे कि गुरुद्वारे से जो बीजेपी वाले को निकाला गया, देखो गुरुद्वारा कोई सरकारी पब्लिक जगह नहीं है, गुरुद्वारे की कमेटी वालों को, संगत को, और वहाँ पे लोगों का अगर इतराज है और उन्होंने बंदे निकाल दिए तो वो उनका जाती मसला है। ठीक है ना। ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ठीक है, उन पे आप मुकदमा कर सकते हो अगर कानून की। जी राजेंद्र जी, आपका टाइम हो चुका है, अब आगे माइक फ्लैश करेंगे। कोई अगर बात रखना चाह रहा था अपनी इसी से रिलेटेड, अगर कोई काउंटर करना चाह रहा है, ओके एडी बोलो। सब पे आएंगे, हम सब पे आएंगे। एडी के बाद पुनीत। ओके, आई नीड अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, आई एम गेटिंग अ कॉल। जाना होना होता है। ओके ओके, पुनीत देखो, ऐसा है कि दुनिया में सब पॉलिटिक्स होती है और ये प्रवचन देने वाले होते हैं ना, बस वो संत होते हैं यहाँ पे क्लब हाउस में। ये जो राजविंदर आया ना, ये यार पन्नू का बंदा है, सीधी सी दिख रहा है बात, अरे पकड़ लो, ये कर लो, अरे इन बातों का मतलब ही नहीं है, किसको समझा रहे हो? अभी टारगेट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कहूंगा, फक यू राजविंदर, फक यू, गेट आउट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, निकलने दो, कोई बात नहीं, रामलीला रोक दी है। दीप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, कोई बात नहीं। फक यू, प्लीज माइक ऑफ करें प्लीज। एक मिनट राजेंद्र जी, गुरुद्वारे में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये फैसला कमेटियां करेंगी कि गुरुजी करेंगे? एक मिनट, फोन पे एडी है यार, फोन पे एडी है। नहीं राजेंद्र जी ने बोला। ओके एडी जी कुछ बोल रहे थे मेरे ख्याल से। एक मिनट मेरी बात करने दो जी। कल ये बंदे ना मेरी बहस हुई है इस मुद्दे पे। रुको जरनैल भाई क्या हाल है? दीप भाई की आवाज नहीं आ रही। दीप भाई मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कौन बात कर रहा हूँ पूरी। ये कह रहे हैं यार, वो गाड़ी चला रहे हैं ना, तभी कह रहे थे 5 सेकंड लेना चाह रहे। बोले आप दीप भाई बोलो। हाँ बोलो भैया बोलो, आप बोलो। ओके, ये बंदा ਉਹੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਮਨਜੋਤ। तेज कर आवाज आओ भाई, दूर से आ रही है। ओके यार, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। पुनीत रुको कितना टाइम लाना चाहते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। सारे डंडा दे बादे दे डन जर्नैल जी ने अपनी बात की है। रुको और कोई बात करना चाहता है इनसे? मैं अभिजीत काफी यार ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ तो ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੜਪ ਮਾਰੂਗਾ ਸਾਲਾ फिर। नहीं अभिजीत सुनो नहीं, मैं सिर्फ रोहन से बात करता हूँ एक बार, और रोहन से बात करनी है। भाई तुम एथिस्ट हो, ठीक है, तुम कर सकते हो वो सब कुछ जो मैं नहीं कर सकता अभी कुछ 4-5 दिन, ठीक है, तो भाई बिना प्रसाद के भेजना नहीं है,
तो मैं जरा सा कुछ कहना चाह रहा था। जी अभिजीत। हाँ, मैं ये कह रहा था पंजाब में जो हुआ वो सच में बहुत निंदनीय है, क्योंकि मैं खुद भारत सरकार से बिलोंग करता हूँ। एक बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ भारत सरकार में। जो हुआ वो बहुत ही, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हम इस पे किसको दोष दे सकते हैं? क्या हिंदू की गलती है या सिखों की गलती है? ये हम नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते कि वहां पे जो रूलिंग कमेटी है या रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं उसका भी इसमें काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है अंदर ही अंदर। बट आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे मैं सुन रहा था कि सब लोग कह रहे थे कि सिखों के साथ अभी कोई कुछ, मुझे हिंदू के बारे में अभी जस्ट किसी ने कहा कि पंजाब गुरुद्वारा, कौन डिसाइड करेगा कि हम राम की पूजा करेंगे या कौन करेगा? ये हमारे ये किसी ने भी नहीं हमारे खुद के ऊपर है कि हम किसकी पूजा करेंगे या नहीं। भाई एक बात बोलूं मैं, अभिजीत भाई एक बात बोलूं मैं। बोलिए। आप जैसे कि बोल रहे हो कि आप रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट में काम करते हो या कुछ भी, आपने जो बोला अभी, तो ठीक है, अपने साथ में इसको पोलिटिसाइज कर दिया कि इसमें पंजाब। मैंने पॉलिटिसाइज कुछ नहीं किया, मैंने पॉलिटिसाइज नहीं, मैं बोल रहा हूँ राम का नाम लेना कि क्यों कोई, हम लोगों को क्या, हमको किसी की परमिशन लेनी होगी राम के नाम के लिए, रामलीला के लिए? अब रामलीला पंजाब में क्यों बैन हुआ? नहीं, मेरा कहने का मतलब पंजाब में क्यों बैन हुआ? और भी जगह हो सकता था। भाई जस्ट वन सेकंड। अब पंजाब में तो हम पंजाब की गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। दिल्ली में उन्होंने हमारे तिरंगे को उतार के नीचे फेंका, बेअदबी की, उसमें किसका हाथ हो सकता है भाई? तो उसमें किसका हाथ हो सकता है? मैं सिख को तो नहीं बोल सकता, सिख लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने अपनी गर्दन कटवाई है यार भारत देश में। यार पाजी क्या करी जानने हो साले सुनते पे हैं लोग, ना पता ही नहीं है असली दुनिया कैसे बन रही है। अरे हिंदू सिख बने थे कोई, नहीं, मेरी बात सुनिए। आप लोग हर चीज को उसमें मत ले जाइए। मैंने ये बोला कि पहले डॉक्टर अनम्यूट कर ले। क्या चल रहा है यार? कह रहे हैं कि मैं सरदारों को नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए गर्दनें कटवाई हैं। नहीं, गर्दनें पहले की सीख और अभी की सीख की बातें हो रही है। जो हिंदुओं की गर्दनें काटी हैं वो एक मिनट और जो सिख बन के जिन्होंने गर्दनें कटवाई हैं आसमान से थोड़ी ऊपर, तो भाई मेरे यार तुम लोग ना रुक जाओ पायल जी, रुको, शांति रखो थोड़ी सी। वो मुसलमान था रोहन भाई, शांति। पूरी भाई एक ना, मैंने यहाँ देख पे लिया 12 मोड क्या करे, पहली बात 12 मोड। रुक जाओ। यहाँ पे अपनी सवाल जवाब करेंगे, किसी को कोई उठाएगा नहीं प्लीज, ठीक है? और कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। एक बंदा करके अपनी बात रखो यार। ये ना पता खच मच जाती है एक बंदे की बात। अब पायल की बात किसी और को समझ नहीं आ रही, किसी और की बात किसी और को समझ नहीं आ रही यार। हमें खुद नहीं पता लग रहा कि क्या चल रहा है। मेरे को पूरा मौका ही नहीं दे रहा है कोई। जस्ट अ मिनट अभिजीत, जस्ट अ मिनट। आपको सारा मौका मिल गया है, ठीक है? अभी और भी मिलेगा आपको मौका। कैप्टन मोमो से मैं बात करूंगा। मैं एक यार रुको, ग्रुप को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं यार। जितने भी मोड्स बैठे हैं प्लीज, अगर आप लोगों को विश्वास है मुझ पे, तो एक बार जरा नीचे चले जाएं और मैं आपको दोबारा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो बातचीत करनी बहुत जरूरी है। सिर्फ बातचीत होनी चाहिए यहाँ पे, जो बात है उस चीज का हल निकलना चाहिए। मैं सिर्फ मोड से कहना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप इच्छुक है तो नीचे आ जाए, मैं आप लोगों को ऊपर उठाता हूँ। हाँ, अभिजीत से मैं बात करूंगा पहले। अच्छा सर, एक बात बोलूंगा, बताइए, मैं सुनूंगा। आप बताइए पहले, मैं पूरा बस अभिजीत को मैं सिर्फ एक कहूंगा, रोहन उसके बाद आप बोलिए ना। अभिजीत भाई अपनी सरकारी नौकरी कर लो आप आराम से। ये जो हिस्ट्री है या तो आप पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर मैंने बहुत अच्छे से। मनीष, मेरी बात पूरी होने ही नहीं दी आप लोगों ने। पहली बात यार, पूरी आधी बात पे टोकना पड़ गया तो सोचना भाई गलत बात कर रहा तो नहीं, कुछ गलत नहीं बोला। पहले के सीख और अभी के सीख में बहुत फर्क है। सीख नहीं भाई, पंजाब के लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग जो ये नहीं अनंत, जो आप लोगों ने हिंदू पे अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, ये तो मानते हैं हम। अभी ये किसान के आंदोलन में भी ये लोग अटैक ही कर रहे हैं, सब चीजें बिल्कुल मानते हैं। लेकिन पहले की सीख लोग और अभी, मैं ये बात पे बिल्कुल अड़ा रहूंगा, क्योंकि पहले के लोगों में और अभी के सीख लोग या पंजाब के लोग बोल लो, ठीक है,
अब आप सो कॉल्ड अभिजीत भाई एक मिनट में रोकना चाहता हूँ। एक मिनट मैडम सुनोनी मैडम एक मिनट अभिजीत भाई आप प्रॉमिस करते हो आप एटलीस्ट 4 दिन इस ग्रुप से जुड़ोगे और जो बातें आप सुनोगे फिर उस पे आप इस एंड पे आओगे कि भी हाँ किसने कितनी कुर्बानियां दी थी और कितनी नहीं। अब हम सुनेंगे आपको, पर आप प्रॉमिस करोगे 5 दिन 4 दिन आप जुड़ोगे इस ग्रुप में। आपको जब आप टाइम सुनना मतलब जब आप लोग को सुनाना चाहेंगे मैं बिल्कुल सुनूंगा आपको, लेकिन मेरे कहने में आप लोगों ने चीजों को बहुत गलत तरीके से ले लिया कि मैंने बोल दिया कि पहले कुर्बानियां दी थी। ऑफ कोर्स इन लोगों ने कुर्बानी दी थी तो इन लोग मुसलमानों की ये लोग बहुत गलत भी कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। कौन है भाई? जा मेरा भाई, मैं बात कर सकता हूँ। बंदा सिंह पता करिए माधुदास कौन सीगा भाई। सारों को नीचे फेंक दो, तो बात करना उन्हीं को ऊपर रखो प्लीज, जैसे कर लो। मैं कर सकता हूँ इससे व्यक्ति से बात, या अगर किसी ने थोड़ा सा नहीं रोन करेगा, मैं सुनना चाहता हूँ, रोन करेगा इसको। हाँ राजविंदर जी का भी दिया फुदक रहा है। राजविंदर जी आपको बात करनी है? हाँ जी राजविंदर जी बोलिए। मैं फिर इससे अभिजीत से बात करूंगा आपके कहने के बाद, मैं इसलिए रुका हूँ आपके लिए। बोलिए राजविंदर जी से मैं बात करूं क्या? नहीं फिर तो माहौल बिगड़ेगा। हाँ अभिजीत हम करें बात, आप अनम्यूट कर लो। बताइए रोहन। ठीक है, आपने ये बोला जो पहले के सिख है और अभी के सिख में फर्क है। बहुत सही बात बोली, मैं आपके साथ हूँ। बट आपने साथ में ये भी बोला कि इसलिए मैं क्योंकि सिखों ने बलिदान दिए, ठीक है, तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आपने ये बात बोली ना? नहीं बोला ना, ये नहीं बोला मैंने बोला उन लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते। ये अच्छा, आपने फिर क्या बोला? हम डेमोक्रेसी में है, हम सबसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो पंजाब में हुआ वो बहुत निंदनीय है, ये तो 100% है जो चीज हो रही है वहाँ पे। पर मैं ये बात नहीं मतलब है कि वहाँ पे हमारी भी गलती है। अच्छा फिर एक बात बताओ, ये बात आपने बोली है तभी तो आप बलिदान पे गए हो। आपने बोला मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि क्या है ना, अंदर जो सिखों के बारे में जो हमको पता है या सिखों के बारे में जो अभी हमको पता है, पहले के सिख और अभी के सिख में मेरी बात आप लोगों ने पूरी रखने नहीं दी और सब लोग समझ गया भाई तेरी बात। अच्छा फिर पहले के हिंदू और आज के हिंदू में क्या फर्क है? बहुत अच्छे से मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ रोहन। नहीं वो आप यूपी से होंगे, मैं हरियाणा से हूँ। मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में हम अपनी मम्मी पापा से भी तू करके बात करते हैं। हमारी बोली हमारा कल्चर है भाई। गुरुओं की तो बात कर रहा ना, गुरुओं को भी कहता है तू। हाँ ये हमारा कल्चर है अभिजीत, ये हमारा कल्चर है। इफ यू वांट आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, बट मेरे कल्चर को बुरा मत बोलो, मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है फिर हमारे पास लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। सो चलो बात अब बात करेंगे कि अच्छा आपने बोला पहले के सिख और पहले के। माइक ऑफ कर लो अभिजीत, आपसे बात कर रहे हैं, आप बाद में जवाब देना। बोलो पहले। अरे वो तो मैंने बोला था इसको अनम्यूट करने के लिए। नहीं आपको ऐसे अनम्यूट में आवाज गूंजती है यार। ठीक है, तो फिर तो हमें ये भी होना चाहिए कि पहले के हिंदू और आज के हिंदू, लॉजिकली देखा जाए मुझे नहीं लगता आपको सिख हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी इल्म है। मुझे पता है आप उर्दू जुबान के बहुत करीब होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिख हिस्ट्री का इल्म है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ना, उनकी जितनी भी हिंदूज की एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं वो मोस्टली हिंदूज है या सिख है। ठीक है, आपको पता होगा हिंदुओं का ज्येष्ठ पुत्र सिख एज एन आर्मी डिसाइड हुई थी। क्या आपको पता है ये बात? पुरातन समय में आर्मी थी सिख, क्या आप इससे वाकिफ है? मैं ना बहुत अच्छे से सर हिंदू को समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद संघ परिवार से जुड़ा हूँ। इसमें संघ कहाँ से आया बीच में? क्यों नहीं आता? अभी हम बलिदान की बात आप हिंदू की बात कर रहे थे, मैं बलिदान पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं दिए? बाबा बंदा सिंह और इन लोगों ने नहीं दिए। भाई बंदा सिंह पहले की बात कर रहा हूँ, पहले की। अभी मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि पंजाब में जो हो रहा है ये गलत है, अभी गलत है। नहीं तो अरे भाई ऐसे तो मराठा साम्राज्य ने, एक मिनट, मराठा साम्राज्य ने मेरी बात, इसको पता नहीं है, इसको नीचे बैठ के सुनने दो ना कि वहाँ पे चल क्या रहा है। जिसको पता ही नहीं है उसको आप लेके आ रहे हो यार। मध्य प्रदेश का यार आ गया होना, 5 मिनट हो गए। रुको मेरी बात सुनो यार। ऐसे बंदे को मत उठाओ, उसको बंदे को पता ही नहीं है। अगर वो ठीक भी है ना अपनी जगह पे, उसको बिल्कुल नहीं पता।
और मैं भरपूर पूरी इज्जत करता हूँ, सभी गुरुओं की इज्जत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। मैं अपने सिख भाइयों की भी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको वहाँ के माहौल का नहीं पता कि समय क्या बेनिफिट क्यों मिलता है यार, बलिदानों का बेनिफिट क्यों मिलता रहता है? फिर मराठों को भी मिलना चाहिए यार, फिर तो ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, पेशवा बाजीराव थे। बिल्कुल, देखो सबने बलिदान दिया, जिसकी भूमि थी उसने बलिदान दिया। ये कोई किसी के ऊपर एहसान एहसान नहीं किया, सुनो ना, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, किसी चीज का बलिदान दिया। अगर माँ बाप की रक्षा अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कोई बाहर का आके नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखें सभी ना। तो मैं सिर्फ आपने सही किया उसको नीचे भेज के, क्योंकि जो आपकी लास्ट वाली बात है ना कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, और अगर बच्चे नहीं बलिदान देंगे तो कोई बाहर का आके थोड़ी करेगा। तो इस बात से ना मैं इतना सहमत हो गया कि ऐसे व्यक्ति से ना सच में जूझने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। थैंक यू गुरी, आगे चलते हैं। मतलब बोलो गुरी भाई, आप बात करो। नहीं, राजविंदर से आप बात कीजिए। Rajvinder, you wanted to say something and you were flashing the mic and we got derailed with this Abhijit guy. So it's okay. You can speak. I do have few questions for you though. अच्छा, ये ना राजविंदर बोल नहीं पा रहा। राजविंदर, I'll send you down और आप फिर ऊपर आ जाना। I think कोई ग्लिच होगा आपके। नहीं, इनको बोलो कि लीव करके दोबारा आए। और संजू भाई भी बैठे हैं यार, कोई अगर माइक फ्लैश करके कुछ बात रखना चाहता तो रख सकता है। दीप भाई को बात बोलनी। विवेक, दीप भाई ने नहीं बोला यार। Sorry about that, there is a mic problem. Anyway, जो पिछला बंदा आया सी ना, कह रहा सी कि पहले से कुर्बानी देते थे, अब वो नहीं देते हैं। भाई साहब, कश्मीर में जो इनकाउंटर हुआ ना मिलिट्री का, 5 फौजी मरे, 5 में से 4 से फौजी से गिर रहे हो, उनको पता नहीं देख सकते। फौजी से गिरे हो यार, क्या बोले जा रहे हैं? फिर तुझे निजात बात मिटाती गुरुओं ने आके। क्या बोले जा रहे हैं भाई राजविंदर? फौजी को धर्म से रिलेट कर रहे हो यार तुम। अभिजीत, देख तूने हमसे भी जूते खाए, तूने राजविंदर से भी जूते खाए। राजविंदर जी, फौजी मरता नहीं, फौजी शहीद होता है, वो भी थोड़ा देर। काश अभिजीत सुन लेता। एक मिनट राजविंदर, ओपन द माइक। राजविंदर तो यार कम से कम फौजियों को तो बख्श दो यार, उनको आप मारे हो, वो तो शहीद होते हैं यार। कम से कम उनके ऊपर तो मत राजनीति करो। हाँ जी, मैं एक मिनट राजनीति के लिए आप लोग सहमत? राजविंदर, बल काफी आवाज जे तुसी फ्री जी करके लड़ोगे ना, पाकिस्तान ने ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ लड़ रहे हो। सरकारी भाई एक बार जरा बल बोल ले यार, वो भी बबलू भाई आप बोलो। हाँ जी, ये बोल रहे थे जी कि राजविंदर यार कौन बोल रहा है भाई? बबलू भाई अभी आपको पूरा मौका है यार, अभी बोलना उनको डायरेक्ट, ठीक है? पहले ये बल भाई अपना काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, बबलू भाई मैंने देखा नहीं आपसे, सॉरी भाई मैंने देखा नहीं आपसे। वो डायरेक्ट उनको काउंटर करेंगे, अभी थोड़ी देर में काउंटर करेंगे उनको। आप बात करें, अपनी बात रख रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने कहा कमेटी का फैसला था कि उनको अंदर नहीं जाने दे बीजेपी के नेता को, उनकी मर्जी, लोगों की मर्जी है। आफत भाई आपका माइक खुला हुआ और आवाज गूंज रही है। आफत भाई माइक बंद करो एक बार। आप कर दो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये कह रहे थे कि कमेटी का फैसला है, वो अंदर नहीं जाएंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुद्वारों पे लगने कमेटियों के फैसले की, मतलब जो फिर हम सुनते हैं कहानियां कि गुरुजी ने 4 दरवाजे बनाए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अंदर कभी भी आ सकता है गुरुद्वारों में। फिर वो सारी कहानियां मतलब अब वॉइड होगी, खत्म हो गई सारी कहानियां, वो वाली पिछली वाली। जो कमेटी डिसाइड करेगी वही चलेगा। या कैन आई आंसर इट? 4 द्वार खुले हैं चारों दिशा में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आकर वहां पे घुस सकता है अपने मकसद के लिए, ठीक है ना? I got my answer. No, let me finish. You didn't get, let me finish. No, let me finish. This is what you ਸ਼ਿਰਪਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, कौन चेक करूंगा फिर? यार शब्द कौन चेक करूंगा? ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਟੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। उनको बोलने दो इनकी बातों से ना आप लोगों की आपको हाँ जी। 1986 में पता क्या हुआ था? जो बेअंत सिंह था ना, जिसे इंदिरा गांधी मारी थी, उसकी वाइफ साथ में 200 बंदूकधारी बंदे लेके, कृपाने भी साथ में थी, दरबार साहिब में चली गई थी लड़ने के लिए।
वहां पे जब गार्ड्स ने, जो वहां पे एसजीपीसी वगैरह के बाकी गार्ड्स खड़े थे ना, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया कि नहीं अंदर जाने देंगे, तो उनमें से एक की पीठ पे घुसा के कृपान उसको वहीं के वहीं मार दिया था दरबार साहिब के बीच में 86 में। ऐसे लोगों को फिर वो अंदर जाके प्रॉपर घूम के आई थी। देखो ये सिखों का, ये अरे भाई बोलने दो यार, बोलने दो। एक मिनट राजेंद्र भाई, ऐसे लोगों को दरबार साहिब में घूमने का जाने का है। अगर हम सिर पे प्रॉपर अपने वो ढक के प्रॉपर सिर नीचा करके दरबार साहिब में जाएंगे तो हमें अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लोग वहां पे बैठे हैं हमें बताने के लिए कि ये किसके लिए अलाउड और किसके लिए मतलब कि गुरुओं से भी ऊपर हो गए। ओके, कैन आई आंसर इट नाउ? हाँ जी बोले। हाँ, सो प्लीज पीपल डोंट जंप ऑन मी, बात सुन लो फिर बाद में जवाब दे देना, कोई फायदा नहीं है 25 लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, नो वन अंडरस्टैंड्स एनीथिंग, ठीक है। पहली बात तो ये कि चारों दिशाओं में चार दरवाजे खोले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सियासतदान वहां पे अपनी रोटियां सेकने आ जाए, ठीक है। तो अगर संगत को अच्छा नहीं लगता कोई सियासतदान आता हुआ तो उसको रोक सकते हैं, उसमें कोई इतराज की बात नहीं है, ठीक है। आफत सिंह जी, आप जितनी मर्जी शिकायतें किए जाएं सिखों के बारे में, आप सिख नहीं हो, ये सिखों का अंदरूनी मसला है, तो आपको देखना पड़ेगा। और राजविंदर जी, आधे से ज्यादा सिख यही होंगे इस ग्रुप में। कौन से गुरु ने कहा कि राजविंदर जी एक काम करो यार, एक काम करो सुनिए राजविंदर जी, अरे मिस्टर बीजी सुने ना मेरी बात सुने। आफत और राजविंदर बात कर रहे हैं, इनको बात कर लेना तो अपना आराम से, ठीक है। और बीच में यार हम लोग सहमत होंगे इन दोनों की बातों से ना, तो प्लीज यार कोई बीच में ना बोले। अगर किसी ने बोलना भी हो तो माइक जस्ट अ मिनट अगर किसी ने बोलना भी हो तो बीच में अपना माइक फ्लैश कर देना, वो कैपेबल है बात करने के लिए। और आफत भी बात सुने, ओके, वो बात सुने बिना आप कैसे कह सकते हैं? आफत चुप ही नहीं होता है, आफत चुप ही नहीं होता है। सर आप गलत बात